right now we are going to start with the chapter Constitution, Why and How. This particular chapter, I know that you have already done in your ninth standard also. अगर आपको याद होगा तो जो हमारा नाइन्थ स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर था वो यही था. The only difference is here it would be somewhat what we call as elaborate. तो पहली बात तो when we talk about any country, अगर आपको याद हो French Revolution, if you remember French Revolution, so what had happened in the French Revolution? French Revolution was the one जिसके अंदर जो लोग थे, they wanted to have a government which is based on certain rules. क्यों? अब मान लो आप लोग कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल, one child is living in Chhattisgarh, one is living in Delhi, one is living in UP, and we are all having different governments. And if there are no set of uniform rules, किसी को कोई प्रिविलेज मिल रहा, किसी को कोई प्रिविलेज मिल रहा, लाइक इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, जो रिच है, फर्स्ट या सेकेंड एस्टेट को बिलोंग करते हैं, they were not supposed to pay any taxes, but the third estate was supposed to pay all the taxes. यानी कि there was no uniformity. जो राजा वहां पर आता था, जो रूलर वहां पर आता था, the ruler will take his or her privilege and will be ruling the country in the same manner. For example, when Napoleon Bonaparte became the dictator of France, उसने जो है कुछ पॉजिटिव चेंजेस की थी, so he also did certain negative changes. यानी कि there was no uniformity. The active citizens were considered participants, and जो passive citizens होते थे, they did not have any rules. That means there should be some basic guidelines जिसके अंडर एक गवर्नमेंट काम करता है. And these guidelines, और ये जो guidelines होती हैं, they have to be in such a manner that जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो they are following it. So a constitution is a written set of laws and fundamental. Why do we use this word fundamental? Because fundamental का मतलब है they are only basic. And when we need to modify it, when we need to, जब हमें उसे चेंज करना होता है, सिचुएशन है, अब 1947 में इंडिया का सिचुएशन और 2023 में इंडिया का सिचुएशन इज डिफरेंट. At that time there were certain, for example, article 370, उस वक्त जम्मू कश्मीर was not part of India completely. Today it is part, है ना? So that is why we say fundamental principles to develop a relation between people and government, which comprises a number of articles. And यहाँ जो state use हुआ है class 11, it is used for the country, not for the states. हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट यूज करते हैं फॉर द कंट्री, एंड स्टेट्स आर द वन जो हम सब डिविजन यूज करते हैं. तो पहला वो क्या करता है, एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मतलब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. नाउ ऑल द जो भी आपका गवर्नमेंट है, whether it is belonging to this political party or that political party, सबको एक बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो बेसिक रूल होता है हम लोगों के लिए वेलफेयर, द बेसिक वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पीपल. अब उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दैट डिपेंड्स फ्रॉम वन country to another, one state to another, one political party to another. Secondly, जो बहुत बहुत important है, how the government would be constituted and who has the power to make decisions. Now, if elections are not there, what will happen? सोचो, when we talk about the French Revolution, there were no elections, and even if the elections were there, the people who जो choose करते थे, they were also limited.
तो फिर जो गवर्नमेंट होगी वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, यानी कि देयर शुड बी सम रूल जिसको हर एक फॉलो करे। एंड इन इंडिया वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ इलेक्शंस। और आपको हमारे इंडिया का इलेक्शन जो आप आगे पढ़ोगे, नॉट इन 11th स्टैंडर्ड बट इन 12th स्टैंडर्ड, यू विल बी रीडिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन, सेकेंड बुक में पढ़ोगे आप लोग। इलेक्शन कमीशन हमारा एक ऐसा ऑटोनॉमस बॉडी है जो कीपिंग एवरीथिंग असाइड आपके रूल्स बनाता है, जिसको हर एक को फॉलो करना ही होता है। थर्ड, lay some limitations on government power by guaranteeing rights to the citizens. ये वाला जो राइट्स वाला जो चैप्टर था आप लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स वाज डिलीटेड आई सपोज। डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे वो राइट्स हैं, फंडामेंटल हमारे कुछ राइट्स हैं गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए, लाइक इक्वालिटी जो आपके चैप्टर्स भी हैं, आई नो, इक्वालिटी, जस्टिस, ये जो सारे के सारे वर्ड्स हम बोलते हैं ना, इनमें दे कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज हार्मिंग अस, क्योंकि हमारे पास पावर है। वी हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट यूजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। We have the power to participate in the governmental functions. We have the power to ask the government कि हमारा पैसा जो हम लोग दे रहे हैं where it is, RTI, यानी कि गवर्नमेंट आपके पैसों को, आपके मतलब कि किसी भी चीज को जो है ज्यादा मिस इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि हम लोगों को अपने राइट्स इतने अच्छे से पता नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है। आई थिंक हम लोगों को एज अ कंज्यूमर भी वी डोंट नो हाउ मेनी राइट्स वी हैव, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। लेकिन द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव मेनी राइट्स, some are called as fundamental rights, some are called as civil rights, some are only मतलब कि स्पेसिफिक आपके जो सिचुएशन है वहां यूज होता है। And that is what the IAS, the lawyers, they all do. To enable the government to fulfill the aspirations of society and create conditions for a just society. यानी कि गवर्नमेंट को एम्पावर भी करता है, at the same time it also instructs the government how to deal and fundamental identity of people. अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बना था, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये वाला जो हमारा है, इसके अलावा 1940s में हम लोगों ने जब 10th पढ़ा था तो नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था। एंड देन अंडर नेशनलिज्म इन इंडिया वी हैड रेड दैट it was 1947 when we got the freedom. एंड देन बट ऐसा नहीं था कि 47 में हम लोगों को एक दिन उठे एंड ब्रिटिश, इट वाज नॉट। 45 के बाद द ब्रिटिश वर एक्चुअली रेडी टू लीव इंडिया, एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ ग्रेव प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम था हिंदूज एंड मुस्लिम्स का। आपका 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एंड अंडर द टू नेशन थियोरी India was partitioned into India and Pakistan. लेकिन उससे पहले ही it was decided that whenever India would get the independence, 1930, मोतीलाल नेहरू जी ने पहली बार एक सेट ऑफ रूल्स बनाया था जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आपके, देन आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड अदर जो आपके फ्रीडम थे उनको ऐड किया। बट 30s में कुछ नहीं हुआ था हमारा। उसके बाद 45 में ही जो आपका अभी का पाकिस्तान, अभी का हिंदुस्तान, अभी का बांग्लादेश, ऑल दीज वर इंडिया। द प्रेजेंट पाकिस्तान, द प्रेजेंट बांग्लादेश, द प्रेजेंट इंडिया, इन एरियाज को डिवाइड किया गया इनटू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड
फ्रॉम देम जो कॉमन पीपल होते हैं, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जिनको आगे आना था, एंड दे वर ऑल काइंड्स ऑफ, मतलब उसमें डॉक्टर्स भी, राइटर्स भी, टीचर्स भी, पॉलिटिशियंस भी, मतलब ऑल काइंड ऑफ पीपल took participation. There was a complete constituent assembly, but when India was partitioned, जो आपका एरिया पाकिस्तान वाला था वो आपके मेंबर्स हट गए, and only the members who were belonging to India came under the cabinet. फिर उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के बाद, एंड आपको पता है जो हमारा ये पार्ट था, इसे 46 में हो गया था, but it took 1 year for completing all the formalities, and it was on 14th August when the formalities were completed. पाकिस्तान आपका पहले आजाद हुआ और फिर हमारे को जो है we were given the independence. तो it was right from 45 हमारा start हो चुका था, and at that moment in 46 the constitution was framed. मतलब उस वक्त में हमारा constituent assembly बन गया था, and the people who belong to that area they were removed, and only the people who were in. फिर उसके बाद उसकी एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनी. ड्राफ्ट का मतलब होता बनाने वाला, एंड अलग अलग कमिटीज बनी जिसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज सेड टू बी द प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एंड राजेंद्र प्रसाद पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. एंड इन दिस मैनर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड वर्किंग. बट इट इज नॉट लाइक, अगर मैं जब भी इसके बारे में पढ़ती हूँ ना, आई रियली फील सो हैप्पी कि आज हम लोग जो है एक दूसरे को मारने पे रहते हैं. अब चल बताते हम आपको, टुडे वी आर ओनली ऑन दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, मतलब कि हाउ मेनी, बट एट दैट मोमेंट इफ यू रीड द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप एक एक आर्टिकल को पढ़ोगे ना, यू विल सी दैट पीपल हैड टेकन माइन्यूट डिटेल्स. मतलब अगर हम एक एरिया को लेते हैं, हेल्थ को, तो दे हैड टेकन ऑल द माइन्यूट ड्यूटी. दे हैड टेकन द, ये नहीं है कि दिस पर्सन शुड नॉट बी टेकन, देयर वाज अ कंप्लीट कंसेंसस. आपका जो इंडिया गेट है यहाँ पर, अभी तो इंडिया गेट इज समथिंग डिफरेंट, बट यहाँ पर लोग आते थे, दे यूज्ड टू सिट, जैसे सब लोग बैठते हैं, एंड देन देयर यूज्ड टू बी डिस्कशंस. हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते थे, लेकिन जब बात आती थी इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो लोग मान जाते थे, और उसी को हम बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, कॉन्सेंसस. दैट वुड बी टर्म्ड एज कॉन्सेंसस. कॉन्सेंसस मतलब मिलजुल कर. हाँ, कई चीजें मुझे आपकी पसंद नहीं आएंगी, कई चीजें आपको मेरी नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम देखें कि इट इज फॉर द बेटरमेंट, आपको घर में भी आपको पता होगा ना, मम्मी जब खाना बनाती है तो नॉट एवरी सब्जी इज लाइक बाय एवरीवन, है ना, बट लेकिन फिर हम खाते क्यों हैं? बिकॉज इट्स कॉमन, इट इज फॉर ऑल, एवरी टाइम इट कैन नॉट बी माई पसंद. तो सिमिलरली द सेम थिंग वाज अप्लाइड. each and every area was taken, and then नवंबर 49 हमारा ये लिखा हुआ कंप्लीट हो गया. बड़े सारे चेंजेस आए ओवर द पीरियड, एंड अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि हम इसको अडॉप्ट करेंगे. लेकिन ये आपका क्वेश्चन 9th में भी बच्चे गलत करते हैं और 11th में भी सेम क्वेश्चन को भी गलत करते हैं. इट वाज मेड, इट वाज अडॉप्टेड, लेकिन इसको इफेक्ट में लेकर आए हम 26 जनवरी टू पे ग्रैटिट्यूड टू जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुत पहले इस चीज को बोला था कि 26 जनवरी 1930 वी विल बी हैविंग आवर इंडिपेंडेंस. टू मार्क दैट डे हम लोगों ने उसको जो है 26 जनवरी 1950 को हमने फोर्स में लेकर. This is one of the very, very important question in 1 marker. And it is always, you know, बच्चों को जब बोला जाता अडॉप्ट तो वो लोग 26 जनवरी लिख देते हैं. अडॉप्ट आपका है नवंबर, and came into force या came into effect is आपका 26 जनवरी, and till date we celebrate our Republic Day on that. It is the supreme law and it is respected by all. Now the question comes, why? Because it is one of the largest
one of the longest and one of the deepest constitutions. The word deepest means, as I said, it is relating to everyone's aspiration. The Constitution of India is a blend of, ये पेपर में आपके आने के चांसेस हैं क्लास 11. Why is, मतलब ये दो तरीके से आता है. Is the Constitution of India rigid, या फिर the Constitution of India is both rigid and flexible? This has really come in the papers many a times. Why? Some ऑफ द, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो वेलफेयर के लिए बनाया गया है, दोस प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड. अगर कोई कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इनको हटा दो, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. वेयरएज देयर आर सम प्रोविजंस जिनको आप एक तरफ चेंज कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है it is for the welfare, and some of them have to be taken in both the houses. For example, the formation of states. जब आपका, अगर आप पहले की अगर आप पढ़ते हो तो मध्य प्रदेश वॉज सिंगुलर, एक स्टेट था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन आपका बिहार, देन झारखंड. अभी रिसेंटली जो हुआ था वो था आपका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. तो ये हाउ डिड दे, मतलब कि बेसिकली दे आर नॉट सपोज टू बी, आप डिवाइड नहीं कर सकते हो. तो बट हाउ वर दे डिवाइडेड, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्लेक्सिबल. यानी कि आफ्टर हैविंग डेलिब्रेशन, आप बातचीत करके, आफ्टर हैविंग नेगोशिएशंस, आफ्टर हैविंग डिबेट, आप उसको चेंज कर सकते हो. बट द फंडामेंटल कैन नॉट बी चेंज. ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. तो जो वेलफेयर के लिए है उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप बेसिक राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हो. आप, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, कैसे हटाया? दैट इज आपका फ्लेक्सिबल. द फेडरल फीचर्स of the Indian Constitution are, it is written, flexible, distribution of powers between centers and state, जिसका आपका सेकेंड चैप्टर है शायद, फेडरलिज्म, supremacy of judiciary and existence of bicameral legislature. Now you know what is the difference, what is distribution of center. सारे, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर, I belong to Tamil Nadu. Some of the students in my institute, they are belonging to Kerala. Some of them are from Karnataka, some of them are from Calcutta. Last year the jo topper thi, she is living in Kolkata right now. She has just shifted to Delhi just 2 days back. So we are all living in different areas, हमारे different है. So the same rule cannot be done. जब अगर आपको याद हो, how was फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के आधार पर द कंट्री वाज डिवाइडेड. सम ऑफ द स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, जैसा आपका यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका तेलंगाना. एंड देन सेंटर के पास पावर है फॉर द एंटायर कंट्री, और स्टेट्स के पास पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ओनली टू दैट एक्सटेंट जहां उनको अपने लोगों को देखना है. लाइक हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के पास सारे पावर्स होते हैं, टीचर्स के पास सिर्फ अपनी क्लास के पावर्स होते है ना. सिमिलरली देन अगर पॉलिटिकल पार्टीज कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज, वो लोग हमेशा किसी भी चीज का एडवांटेज ले सकते हैं, तो उनके ऊपर अगर वो गलत करें तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो जुडिशरी को सुप्रीम बनाया गया. कोई भी, if there is any conflict between the center and state, if the governments are misusing their power, then judiciary can review, judiciary can interpret, judiciary can put a stop. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब इतने बड़े आपके शहर हैं
which cannot be tackled with one single stage. Still, यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी हमारे यहाँ पर वी आर हैविंग बाई कैमरल, मतलब दो दो, लोकसभा, राज्यसभा, एंड इन द स्टेट्स वी हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड किसी किसी में विधानसभा, विधान आपके अलग अलग, बट नॉट इन ऑल द स्टेट्स. अभी आप पढ़ोगे, आई थिंक इट इज इन द सेकेंड और थर्ड चैप्टर, इट इज देयर. तो सम ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो हैविंग बाइकैमरल, और हमारा जो सेंटर है उसमें भी है बाइकैमरल, मतलब दो, एक जगह पर जो है द डिसीजंस आर नॉट टेकन. द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बोरोड, ये भी आपका एक पेपर का क्वेश्चन है जो आपके पीछे आएगा. दिस वन आई थिंक इट इज देयर इन योर बुक आल्सो. दिस वन, Indian constitution is a bag of borrowing. This is the question. The question comes, Indian constitution is the bag of borrowing. मतलब हमने, borrowing का मतलब it is not that कि we have borrowed, means we have taken the goodness of all the constitutions across the world. क्योंकि कुछ हमारे पहले बन गए थे, जैसे अमेरिका का, ब्रिटिश का, कनाडा का. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस फॉर अस, एंड उसके साथ वी आल्सो टुक द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935. ये आपके पेपर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, एंड दिस हैज ऑफन कम इन द पेपर. सो यू हैव तो, अभी हम वो पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे, दैट फ्रॉम व्हाट, मतलब किस किस कंट्री से हमने कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया है. इंडिया के अंदर सारे फीचर्स है, नॉट ऑल द कंट्रीज आर हैविंग ऑल द फीचर्स, बट वी हैव बोरोड ऑल द फीचर्स. हमारे बाद अगर हम कहते हैं कि बहुत अच्छा फीचर है तो वो साउथ अफ्रीका का माना जाता है. नाउ व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू गो टू द events of pre-independence, if you go to the events of French Revolution, आप देखते हो कि there should be something जो यूनिफॉर्म हो सबके लिए, whether you are black or white, you are boy or girl, you are belonging to rich or poor, there should be a basic rule which has to be followed by everyone. There should be a minimal degree of coordination, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे बताओ. इफ देयर इज नो रूल, व्हाट विल हैपन? एवरीबॉडी विल मूव इन देयर ओन वे. मैं कहूंगी भाई मेरी मर्जी, आप कहोगे मेरी मर्जी. सो वी ऑल आर, हम लोग क्या करते हैं, व्हाई डू वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स? बिकॉज वी नो इफ वी ब्रेक देम वी आर गोइंग टू बी पनिश्ड, एंड these are supposed to be enforced also. There are some body of fundamental principles to which a state is constituted. Already I have told कि हमारा election, हमारे specific allocations, and parliament gets to decide the laws and policies. हमारे यहाँ parliament is said to be the one of the supreme authority where the laws are made. ये हमारा working of institutions वाला chapter था in our 9th standard. Now, what are the limitations that have been put on the powers of government? I have already told you कि government can definitely misuse its power. अगर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका उनको डर नहीं है, अब आप लोग क्यों पढ़ाई करते? Truly, 90% of the students study because they need the marks, not because they want to get the knowledge. This is the truth. 90% of the students will study because they want the marks. मार्क्स नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो वो नहीं होगा. यानी कि एक डर बैठा है ना. एग्जाम से पहले क्यों पढ़ते हो आप? क्यों पढ़ते हो एग्जाम से पहले? द रीजन इज कि टुमारो एग्जाम है, 0 आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी. द सिमिलर थिंग इज दैट कि देयर शुड बी सम फियर इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी तो कुछ डर होना चाहिए ना, अदरवाइज वो अपने प्रोसीजर्स को अनफेयर कर सकते हैं.
and then there should be some limits, otherwise what will happen? See the नेपोलियन बोनापार्टे का देखो, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का देखो, कितने उन लोगों ने जो है कई कंट्रीज में आपके जो है देयर इज लिमिटेशंस ऑन व्हाट यू कैन स्पीक, जिसको हम सेंसॉरशिप बोलते हैं। सेंसॉरशिप मतलब you cannot criticize the government openly, you cannot speak certain things, but at least in our country we have certain democratic rights, यानी कि there is some limitations, government उसको नहीं कर सकता है। This we have already done, that we have the fundamental rights. For example, no government can be allowed to violate such as protection from being arrested arbitrarily. ये दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल। मतलब आप किसी को भी जाकर पकड़ के, मूवीज में दिखाते हैं ना, स्पेसिफिकली द मूवीज ऑफ अजय देवगन, दैट शोज दैट की मतलब की गलती किया, उठाया, सीधा लॉकअप में डाला, पैर से ठप 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 मारा। एक्चुअली में दैट इज रॉन्ग, पॉलिटिकली इट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट टच अ पर्सन, you know, I have stopped watching half of the series just because of all these rules. Even certain times my family would say, Mama, watch it like a as an entertainment. No, this is wrong. A woman cannot be arrested by a man. How can he? मतलब क्योंकि हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं ना, तो हमें समझ आता है, बट उसमें तो कुछ भी दिखा देते हैं, जैसे कुछ भी हो जाएगा। कभी एक ही दिन में कंपनी खड़ी हो जाती है, एक ही दिन में कंपनी बंद होती है, एक सिग्नेचर से कंपनी वहां से वहां पहुंच जाती है। सो इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। द गवर्नमेंट कैन नॉट यूज एनीथिंग। ये ऐसा नहीं है जैसे कि मूवीज में दिखाया जा रहा, उठाया आया चलो ठीक है तुम्हारा, सीधे उसके पास है भाई, यू हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस, यू हैव टू यू नो, मतलब दैट इज व्हाट वी आर सेइंग यहाँ पे जो राइट्स है। इफ समवन इज अरेस्टिंग अनदर पर्सन, द पर्सन हैज द राइट टू आस्क क्यों कर रहे हो। शाम के बाद आप नहीं कर सकते हो, 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ता है, और जेल में तो आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हो जब तक आपके ऊपर केस जो है वो एफआईआर नहीं होता है। यू आर केप्ट इन द रिमांड, यानी कि दीज आर द मतलब कि वो जो कि मिसयूज करने से आपको बचाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। अभी आपकी जो करंट गवर्नमेंट है ना, दे आर द वन जिन्होंने इन रूल्स के अंडर कितनी प्रॉब्लम्स को देखा था, and how these rules were at 12th में है। very interesting chapter, how during emergency these fundamental rights were violated। citizens will normally have some basic liberty, I've already said, freedom of speech, conscience, association, conducting a trade or business, and specific circumstances, it specifies the circumstances when there these rules, which is like national emergency। अभी जो मैंने आपको बताया, this is a separate chapter which you will be having in your 12th standard, and that's a very beautiful chapter। Now let us come to what is the aspiration and goals of a society। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होता है उसको ऐसा एक सोसाइटी बनाना है जिसमें जितने लोग रहते हैं, their aspirations, their goals should be fulfilled। यानी कि most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power। The best example is French Revolution, जहां पर गवर्नमेंट हैड द पावर बट द पीपल डिड नॉट हैव। इवन दो, अगर आपको याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देयर वाज अ शॉर्ट पीरियड जब आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से पहले आपका मोनार्कियल बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इफ यू रिमेंबर। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर क्या था, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अंदर दर पावर्स वर मोर विद द गवर्नमेंट एंड लेस विद द सिटीजन्स। बट एक रियल डेमोक्रेसी, एक रियल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है विच गिव्स मोर पावर टू द इट्स सिटीजन्स ऑल्सो।
Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits to the power of government, but they will also have to enable and empower the government to take positive measures. हमारे यहाँ पर we are having so many problems: illiteracy, caste system, then what we call as the difference between rich and poor, यानी कि social disorder. अब हमारे यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स है. We are not dealing with one single problem. Since independence till now, there are number. तो यानी कि इन inequalities को आप खत्म कैसे करो? It is only when the citizens get more rights, the government also has the power to give that equality. For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. और गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसीज, देन अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इनके थ्रू कोशिश की है कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाए. इट्स नॉट दैट मच ओपन इन द अर्बन एरियाज, बट इन द रूरल एरियाज स्टिल इट इज अ taboo. I don't know how much you all know, but I know. मैंने अपने मतलब कि I have seen it's, even though I belong to the highest what we call Brahmin, लेकिन मैंने देखा है कि how people from our society they discriminate. मैं जो words भी use करते हैं ना, certain times it feels अभी भी है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से हम ओपनली कुछ चीजें नहीं करते. पहले मंदिरों के अंदर अनटचेबल्स का जाना, भाई भगवान तो सबका एक है ना, भगवान तो सबका एक है ना. यू मे बी कॉलिंग दैट भगवान विद कृष्णा, आई मे बी कॉलिंग इट रामा, बट भगवान तो सबका एक है. तो उसमें हम हाउ डू वी डिस्क्रिमिनेट? द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड अनटचेबिलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट दैट ईच इंडिविजुअल शुड हैव that which is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social respect. Being minimum material well-being, material मतलब पैसा, यानी कि आपको जो काम करना आप करो, आपको जो पढ़ाई करनी करो. अब अगर ये बोला जाए भाई आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो so you should not enter into this education sector, is it right? So the Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. जैसे आपका reservation, nobody can touch it. Though at one point I feel it is wrong, but at one point it is very important. क्योंकि that also ensures कि जो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, they should also understand. Now, what is the fundamental identity? आपको पता है in countries like America, you have dual identity. आपकी dual identity होती है. हमारे यहाँ single होती है. You are an Indian, I am an Indian. But there they have the identity of nation as well as they have identity to their own. उनके double citizenship के rule में चलता है. People as a collective entity come into being only through the basic constitution. हम सब एक ही हैं. We are all. Maybe I am staying at one place, you are staying at one place, but basically we are all Indians. National identity हमारी सबकी है. And different nations embody different conceptions of how the relations between different region of a nation and central government. जैसे मैंने आपको बताया, in US you have double citizenship. This even this is there in your syllabus also. हमारे syllabus में भी है. We are not having double citizenship. We belong to only one nation, that is India. Whether I'm living in Delhi or I'm living in UP or I'm living in Tamil Nadu, I am an Indian. वहां पर क्या होता है? They are Americans, but also to the state where they belong. क्योंकि that is a united इसीलिए. In most countries, constitution is a compact document that comprises of articles about how the state is to be constituted and what not. In some countries such as UK, you do not have one single document.
that can be called, but they have a series of document and decisions that taken collectively are referred as constitution. किसी किसी में तो सिर्फ एक ही है. अब आपके पेपर में दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोड ऑफ प्रोम्यूलिगेशन, यानी कि कैसे ये बना था, देन हाउ, व्हाट वर द थिंग्स विच इफेक्टेड, एंड हु आर द पीपल जिन्होंने आगे बढ़कर इन चीजों को किया. It talks about how a constitution comes into being, who crafted, and what is the limit of that authority. In many countries it remained defunct. ये पेपर में आया था बच्चा एक बार कि why in many countries they have remained defunct. And if you see, in many countries like Belgium, the constitution was amended 3 or 4 times. हमारे यहाँ पर हम सिर्फ उन आर्टिकल्स को अमेंड करते हैं वेयर वी रिक्वायर, एंड हमारे पास एक और है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. लेकिन कई कंट्रीज में दे हैव नॉट बीन इन यूज. डिफंक्ट मतलब दे आर नॉट इन यूज. एंड व्हाई? ये पेपर का ही क्वेश्चन है. Because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. उसके बाद उसको कोई यूज नहीं करता. Some successful constitutions like India, South Africa were created in the aftermath of popular national movements. If you have studied about South Africa, Nelson Mandela, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उनमें और हम में एक चीज कॉमन थी, एंड दैट वाज रूल्ड बाय एन आउटसाइडर. राइट? फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूलर्स वर नॉट आउटसाइडर्स, बट इन इंडिया द रूलर्स वर आउटसाइडर्स. साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय द यूरोप, द व्हाइट मिनॉरिटीज. उसकी वजह से क्या हुआ था? They had the discrimination called as apartheid. उन्होंने स्लेवरी देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, और हमको तो ब्रिटिश मानती थी दैट वी आर ऑल पुअर, वी आर ऑल प्रिमिटिव, हमें तो तमीज ही नहीं है. और हम दोनों देशों को जो है अपने पॉपुलर स्ट्रगल्स के थ्रू दे हैड कम. तो जब आप स्ट्रगल करते हो ना बेटा, तो आप उन हर चीज की वैल्यू को समझते हो. एंड दैट इज व्हाट इज दिस सेम कि इंडिया और मतलब कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों पावरफुल है? बिकॉज इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस्ड. Some countries have subjected their constitution to be a full-fledged referendum. बेटा, what is the meaning of referendum? रेफरेंडम का मतलब होता है आपका पिनोशिया ने किया था इन चाइल्ड, यू ऑल्सो कॉल इट एज चिली. देयर व्हाट, कोई भी अगर रूल को अप्लाई करना होता था तो द लीडर, द पॉलिटिकल लीडर विल पुट द इश्यू इन फ्रंट ऑफ द पीपल और उनसे वोट मांगेगा आप इसके साथ में हो या इसके खिलाफ हो. इन आवर कंट्री such referendum was formed while Junagadh was constituted into India. Plebiscite हम बोलते हैं इसको, we call it as plebiscite. ऐसा हमारे यहाँ सिर्फ तब हुआ था जब जूनागढ़ को इंडिया का हिस्सा बनाया गया था. रेफरेंडम इज एन ओपन वोट. रेफरेंडम इज एन ओपन वोट, यानी कि आपके सामने बोल दिया गया, ओके टेल मी वेदर आई शुड डू दिस और नॉट. इफ द पीपल आर इन सपोर्ट, मेजॉरिटी सपोर्ट करती है तो वो इश्यू को लिया जाए. इन सम कंट्रीज, इन आवर कंट्री वी डोंट हैव सच थिंग्स, बिकॉज ऐसे तो सब लोग अपनी ही देखेंगे ना. नोबडी विल लुक फॉर द एंटायर. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. It was formally created by the Constituent Assembly between 46 December and November 49. 2 साल तकरीबन लगे थे, and drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along the different sections of Indian society altogether.
इसमें जो 299 members थे, they belong to different sections. They were not a political group. They belong to different areas. कोई एजुकेशन से था तो कोई मतलब आपका पॉलिटिशियन था तो कोई लॉयर था तो कोई डॉक्टर था तो कोई पोएट था. तो एवरी सेक्शन वाज इंक्लूडेड. Women were included, and the final document reflected the broad national consensus at that time. यही आपके पेपर में आया हुआ. Means, as I said, what I say may not be आपको नहीं पसंद आ रहा होगा. आप जो कह रहे हो मुझे नहीं पसंद आ रहा होगा. But if it is for the welfare of the entire country, we go for the thing what we call as consensus. यानी कि agreeing without any objection. उसको हम कहते हैं consensus. Enormous public authority. It had the consensus backing of leaders who were themselves popular, and it was never subjected to a referendum. लोगों से हाँ या ना नहीं पूछा गया था. There was a participation. The people adopted it as their own, abiding by its provision. Therefore, authority of people who enact the constitution held determine in part of its prospectus for success. वो लोग उसी के पार्ट के थे. उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम्स देखी थी. तो हमारे यहाँ पर क्या क्या है? The hallmark of a successful constitution is it gives everyone in society some reason to go along. आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ. Maybe you may be dealing with some other provision, I may be dealing, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ है. No constitution by itself achieves perfect justice, but it has to convince people that it provides framework. We have the rights. अब हमें नहीं आता है वो एक अलग बात है. And every time rights cannot be provided. Sometimes अगर मुझे कोई फायदा हो रहा तो that may be a harm to other. Like reservation. रिजर्वेशन से उन लोगों का जरूर फायदा हो रहा है, those who are affected, but it is also a negative effect on all others. More, a constitution preserves the freedom and equality of all its members. अगर वो करेगा तो it will succeed. Now, how do we call our constitution as balanced? Institutional का मतलब हो जाता है we are having executive, we are having legislature, and we are having judiciary. And if you remember the second chapter of class 10, federalism, उसमें ये चीज थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको ऐसे दिया हुआ है कि जो लेजिस्लेचर है दैट फ्रेम्स द लॉ. एंड ये जो लॉ होता है इट इज नॉट फ्रेम बाय वन बट द बाइकैमरल लेजिस्लेचर से इसको फायदा मिलता है. देन जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं यानी कि जो पॉलिटिकल एंड परमानेंट, वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड दे आल्सो एंश्योर कि वो फॉलो. एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके फॉर्मेशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ना मानने में, तो जुडिशरी हैज द पावर. यानी कि तीनों के पास अपने पावर्स हैं और तीनों एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं. If the executives are not doing, the judiciary and legislature has the power to ask them. If the legislature is wrong, the judiciary can ask, and if the judiciary is wrong, again the executives and legislatures are there to check. No single group can subvert constitution. Checks and balance, यानी कि there is no monopoly. There is always a fragmentation in different institutions. और यही different institutions है, executive, legislature and judiciary. तीनों के पास अपने powers हैं, कब कहाँ use करना है that is also ensured. Already given. It must strike
the right balance between certain value, norms, and procedures as authoritative, enough flexibility, and to adapt to changing needs and circumstances. Cyber law. It was not there when constitution was framed. उसको रेसिडुअरी में छोड़ दिया गया था. Today, cyber law is part of our constitution. That is how. Yesterday there was some, मतलब कि Supreme Court ने कुछ नया एक law निकाला था. I don't know, some teacher had sent me. Then this is what I said, which can come in your paper. Indian constitution is rigid as well as flexible. मतलब जो basic है उसको हम change नहीं करते हैं, but अगर कहीं पर अपने welfare के लिए we need to change, then it is done. It is described as a living document. Why? जैसे हम change होते हैं, हम सांस लेते हैं, हम बढ़ते हैं, उसमें भी ऐसे ही changes रहते हैं. By striking between the possibility to change the provisions and limit in such changes, the Constitution has ensured it will survive as a document respected by people. You know, after so many years, that is 1946 में ये बना था, before independence, right? And today it is 2023. You can see almost 80 years होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू करते हैं. And the reason is it has struck the balance between the people, the government. उस वक्त में उन्होंने फोर्सी किया था. सोचो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतने लंबे साल नहीं रह सकता है. हम 75 years कंप्लीट कर रहे हैं. The Constituent Assembly we will be doing till here only. The Constituent Assembly we will do till here, because this is very important. Roughly along the line suggested by the plan proposed by Committee of British Cabinet, जिसको हम बोलते थे कैबिनेट मिशन. आपके पेपर का 1 mark क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैबिनेट मिशन. मतलब उन्होंने इसको सजेस्ट किया था कि आप एक कैबिनेट का मतलब क्या होता है, एक मिलजुल कर. ईच प्रोविंस, ये आपके बुक में बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है. ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स पर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन. जैसे 10 लाख के लिए एक, क्योंकि उस वक्त में तो हमारे प्रोविंसेस ऐसे वाले नहीं होते थे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होते थे. वी यूज टू हैव ईदर द ब्रिटिश प्रोविंसेस या फिर प्रिंसली प्रोविंसेस. वो एरियाज जिसमें हमारे राजा लोग रूल करते थे, प्रिंसली, एंड जिस पर ब्रिटिश डायरेक्ट करता था वो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस. एंड दे इलेक्टेड 292 members and princely were allotted 93. The seats were उस वक्त किया गया मुस्लिम, सिक्स एंड जनरल प्रोपोर्शन. जैसे मतलब अगर कम है तो कम और ज्यादा है तो ज्यादा. Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative with single transferable vote. And the method in the case of princely was to be determined by consultation. मतलब ये उन्होंने उस वक्त में एक पूरा एक मिशन बनाया था कि प्रोविंसली जो आपके प्रोविंसेस है वहां कैसे इलेक्ट होंगे, और जहां प्रिंसली है, क्योंकि प्रिंसली में प्रॉब्लम क्या थी, द पॉपुलेशन वाज आल्सो लेस एंड इट वाज रूल्ड बाय द किंग. तो किंग पर आप ज्यादा नहीं कर सकते. नाउ द consequence of partition under the plan 3 June 1940, as I said, there was two nation theory on which India was divided into two parts, India and Pakistan. आपका जो करंट पाकिस्तान और बांग्लादेश है उस वक्त वो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था. मतलब जो अभी का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, जो आपका बांग्लादेश है उसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते. Members elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of Constituent Assembly and the members reduced to 299. ये भी आपको मैंने बताया था. And this also comes in your exam in the 1 marker. मतलब जो उनके थे उनको हटा दिया गया. And then it was adopted on 26 November
and 284 members were actually present on 24 January 50 and appended their signature when it was finally passed. And then it came into effect on 26 January. And इस तरीके से it was framed कि जो minorities होंगे वो भी secure होंगे, जो religious identity, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे साथ प्रॉब्लम था वो यही था, why two nation theory was formed. क्योंकि जो एरियाज थे अमृतसर, लाहौर, पंजाब, कलकत्ता, ये एरियाज थे आपके कम्युनल रायट्स वाले, जहां आपके दोनों तरीके की जो कम्युनिटीज थी वो रहती थी। एंड ये एरियाज वो थे जो मुस्लिम डोमिनेटेड थे। एंड उन लोगों को ये डर था कि कल को जब, अगर आप लोगों ने गदर मूवी देखी हो, मैंने अभी तक नहीं देखी है, बट मैंने सुना है कि उसमें दिखाते हैं, तो it is said that those people who lived in those areas, they feared कि when India will become independent, जो minorities होंगे they would not be treated fairly. लेकिन हमारे constitution में secularism, even though secularism was not added in the beginning, it was later added, लेकिन by giving this equal respect to all the religion, secularism, they tried to promote the peace. Representatives, members of all religions were given representation, and it also had 28 members from scheduled caste. In terms of political party, उस वक्त the Congress dominated. Beta, about Congress you will be reading in 12th standard, and do not confuse the Congress party with the present Congress party. The present Congress party is only a fragment. उस वक्त में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कांग्रेस पार्टी था ना, उसको हम अम्ब्रेला पार्टी बोलते थे। द रीजन इज उस आईएनसी के अंडर, मतलब उसको कहते थे आईएनसी, बट इट वाज मतलब कि उसके अंदर थे द मेंबर्स फ्रॉम रिच पीपल लाइक एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, देन देयर वर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, एंड देन उसके अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, और वही ग्रुप्स आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन चुके हैं। एंड सम ऑफ देम वर इवन पार्टी सेम, मतलब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पार्टी तब था एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, अब वो दो अलग पार्टीज है। सीपीआई एक था, बट लेटर ऑन सीपीआई डिवाइडेड इनटू टू। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल, ये सब आपके 70s में आए थे, दे वर ऑल पार्ट ऑफ आईएनसी। So they were the people who actually fought for the freedom, and they occupied as many 82% of the seats in the assembly after partition, but itself it was a diverse party, जो मैंने बोला, which had all shades of opinion with it. All shades मतलब अगर आप देखोगे, when you read it, मतलब जब आप actually पढ़ोगे ना इसके बारे में, then you will understand basically it was not a political party, it was an institution, Indian National Congress. They were the one who framed the policies. Natural है कि सबको ही उसकी बात को नहीं, लेकिन just because they wanted the welfare of the entire country, they wanted the freedom, इसीलिए they all used to work together. अगर आपको 10th स्टैंडर्ड का नेशनलिज्म इन इंडिया याद हो, उसके अंदर भी आपको याद होगा मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी। सिमिलरली देयर वर डिफरेंट पार्टीज व्हिच वर्कड अंडर, 1925 में आपका सीपीआई बना था, लेकिन दे ऑल वर्क टुगेदर अंडर आईएनसी। टुडे कांग्रेस इज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक दिन में नहीं बना था, एक इंसान ने नहीं बनाया था। इट वॉज नॉट मेड बिकॉज ऑफ कंपल्शन लाइक एनी अदर कंट्री, इट वॉज मेड विद अ कंप्लीट कंसेंसस, सबकी मिलजुल कर मत के साथ बने। So that is what we have read till today. In the next we will be reading what was the policy of deliberation, क्या प्रोसीजर लिया गया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, which was taken by Jawaharlal Nehru. There is a
I think comic also in your book, आपकी book में वो photo भी बनी हुई है. And then what were the institutional arrangements? Then from which different countries, what kind of arrangements we had borrowed? क्योंकि जो आपका एक 6 marks का क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज बैग ऑफ बोरोइंग, right? So this is what we would be doing today. We have done in fact today.